Good morning, students. My name is Dr. Shefali Daya. I am working as PGT Chemistry at GSSS Katapuri, Gurgaon. Today, we'll take 11th class topic Organic Chemistry, and the subtopic is its nomenclature of organic compounds. Right? So, Lesson 12, Class 11, Organic Chemistry, some basic principles and techniques. The very first thing today we'll do is nomenclature of organic compounds. Now, what is nomenclature? Nomenclature is just naming of organic compounds. In organic chemistry, nomenclature is a method of naming organic chemical compounds as recommended by International Union of Pure and Applied Chemistry. It is published in Organic Chemistry Nomenclature and informally known as Blue Book. The very first thing I want to ask is why is IUPAC nomenclature needed? Students, हर चीज़ का नेम बहुत ज़रूरी है. Similarly, organic compounds इतने सारे हैं. Why? Because carbon की हमारे पास दो properties हैं that we did in class 10, right? Carbon की basically two properties that we studied, due to which carbon shows a number of compounds are, very first is it shows catenation. Catenation means one carbon bonds to next carbon, then next carbon, and next, and so on. This is a specific property of carbon that makes it unique, and due to this property, carbon is able to form long chains. Now, long chains mean there will be the possibility of forming number of carbon compounds, and this organic chemistry is dealing with the same. The second property of carbon that we did was that carbon shows tetravalency. Carbon is actually showing tetravalency, means it can form 4 covalent bonds. These two properties we did in class 10. Then we did hydrocarbons. Hydrocarbons are the compounds that are made up of hydrogen and carbon, and we did some 5 groups, and today we'll name them. Why? Because हर structure का एक specific name होना चाहिए, then only we can study and find out that which group we are dealing and which compound we are studying, right? Simple, common and trivial names बहुत सारे हो सकते हैं. Like एक place पे किसी का कोई नाम है, next place पे जाते हैं तो कोई name है. For example, आप लोग हैं, घर में कुछ आपका नेम है, फ्रेंड सर्कल में कुछ है, लेकिन वो जो नेम है वो आपका क्लास में, स्कूल में, सर्टिफिकेट्स में नहीं होना चाहिए. आपका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जिससे कि हम आपको डिफाइन कर सकें, आपको फाइंड कर सकें, राइट? सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एक यूनिक नेम होना चाहिए, एंड फॉर दैट यूनिक नेम IUPAC, जो मैंने आपको अभी बताया, इंटरनेशनल एक यूनियन है जो कि हमारे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रूल्स देती है, राइट? सो व्हाई इज IUPAC नेम आर सो इम्पॉर्टेंट? व्हाई? बिकॉज यूनिवर्सली सिंगल नेम होगा तो वी कैन फाइंड आउट कि उस कंट्री का साइंटिस्ट कौन से केमिकल की बात कर रहा है एंड हम कौन से केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, राइट? वी कैन एक्सचेंज, वी कैन कम्युनिकेट. The next thing is this कि एक every element, every जो compound है, every compound will be unique and unambiguous. हम कहीं कोई confusion नहीं रहेगा कि which compound we are dealing with, which compound we are studying, what is the structure of the compound, and if this is the structure, what is the name of the compound, right? So studies becomes more and more easy by giving the name. कब? जब हम किसी रूल के अकॉर्डिंगली नेम लेते हैं. नेमिंग तो हम करते हैं बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सम नेम रूल्स, दैट इज IUPAC
Nomenclature gives us the opportunity of naming the chemical compounds. Now please note it down what is in the slides. The very first thing I am showing is nomenclature. Why is IUPAC nomenclature needed? The aim is to promote communication. The second is to make it unique and unambiguous. So ideally every possible compound would have a name from which a unique and unambiguous structure formula can be created, right? So इसके कुछ rules हैं जो हम आपको नोट करने हैं. हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ईजीएस्ट जो हम करते थे एल्केन. तो हम एल्केन से ही नेमिंग शुरू करेंगे. सो दीज आर सम रूल्स फॉर एल्केन्स. एल्केन्स आर सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड्स, राइट? कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड है, राइट? द वेरी फर्स्ट इज हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे. फिर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स फाइंड आउट करेंगे. देन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट का चेक करेंगे जब वो कई बार आएगा. नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, कैसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करेंगे. फिर नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट सेम पोजीशन. और उसके बाद नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. फाइन. तो वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल. यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी होती है. लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेस में बेंड भी हो सकता है, स्ट्रेट ज़रूरी नहीं है कि होगा, राउंड भी हो सकता है. किसी भी ओरिएंटेशन में हमारे को केमिकल कंपाउंड मिलेगा. फाइन. तो जो स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है, आप उसके अंदर भी चेक करिए. जो सेंटर में लाइन है मैं आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ. दिस लाइन, यहाँ पर कितने कार्बन है यू कैन चेक. दीज आर 7 इन नंबर, राइट? यहाँ पर एक और चेन बन सकती है, ये वाली चेन बन सकती है, ये 5 कार्बन है. ये वाली बन सकती है, दीज आर 6. एंड ये वाली बन सकती है, एंड दीज आर काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हैं? 8. तो जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम्स की, हमें सबसे पहले वो पिक करनी है उसके स्ट्रक्चर से, राइट? वो हमारा पेरेंट रूट नेम होगा. द नेक्स्ट रूल इज हमें लोएस्ट लोकेंट फाइंड आउट करना है ना. लोकेंट मतलब प्लेस, पोजीशन, जहाँ पर ब्रांचिंग हो रखी है, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है. लोएस्ट लोकेंट के अंदर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर हमने ये तो फाइंड आउट कर दिया कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 7 की है, राइट? हमने रेड से उसको लेफ़्ट टू राइट मार्क किया है, ब्लू से नंबरिंग हमने उसको राइट टू लेफ़्ट की है. अब हमें देखना है कौन सी वाली नंबरिंग यहाँ पर चलेगी. फाइन. हमारे रेड वाली नंबरिंग के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांच है, दैट इज़ ऑन 4th and 5th कार्बन, while in case of blue it is on 3rd and 4th carbon, right? So 3 plus 4 is 7 and 4 plus 5 is 9. So the lowest set का मतलब है 3 plus 4 वाली नंबरिंग जो है वो हम चूज़ करेंगे for naming the compound. So here blue ink वाली जो नंबरिंग है that will be taken. The next is, ऐसा होता है कि जो ब्रांच है वहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग ब्रांचेस पे है, राइट? इस कंपाउंड के अंदर जो 5 कार्बन की चेन है, वहाँ 2nd and 4th कार्बन हैज़ मिथाइल ग्रुप. फाइन. मीन टू से जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 2nd कार्बन के ऊपर मिथाइल है एंड 4th कार्बन के ऊपर मिथाइल है, तो यहाँ पर हम इसको डाई मिथाइल मार्क करेंगे. फाइन. 3 होंगे तो ट्राई. हेयर नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट. इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास सेंटर चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, एक मिथाइल एंड वन द अदर इज इथाइल. लॉन्गेस्ट चेन कर लेंगे. जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. नेमिंग करते टाइम जो इथाइल है दैट स्टार्ट्स विद ई, मिथाइल स्टार्ट्स विद एम. तो ई एम से पहले आता है. जब हम नेमिंग करेंगे तो ई को पहले लिखेंगे, इथाइल को, मिथाइल को
बाद में लिखेंगे. सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लोएस्ट लो कैन से 1 2 3, 3 ethyl, 4 methyl. Fine. The next is what? Naming of different substituent present at the same position. अब different substituent है, जैसे लास्ट केस में थे मिथाइल एंड इथाइल, यहाँ पर हैं लेकिन वो दोनों के दोनों सेकेंड कार्बन के ऊपर है. फाइन. अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसकी नेमिंग भी असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होगी. जहाँ सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है तो 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल आप इसको लिखेंगे. फाइन. The next is naming complex substituents. कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स मीन्स जो ब्रांच है वो छोटी ब्रांच जो बनी है, जो सब्सटीट्यूएंट अटैच है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर. कोई छोटा सिंपल एल्काइल ग्रुप नहीं है, दैट इज़ अ बिग एल्काइल ग्रुप. हमारे को यहाँ लॉन्ग चेन सेंटर में दिख रही है, जो हमारा 4th कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल है और नीचे वाले के ऊपर हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है. ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है. और हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग के लिए हम जो ऊपर वाला ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल कंसिडर करेंगे. एंड आइसो मीन्स, आइसो इज़ अ कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम. तो जहाँ पर भी ट्राइवियल नेम आएगा वो हमारा एल्काइल के मेन नेम के अंदर अटैच हो जाएगा. सो यहाँ पर बीइंग बी अल्फ़ाबेटिकली इन फर्स्ट प्रायर टू आई, ब्यूटाइल पहले लिखेंगे, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बाद में लिखेंगे. वाई? बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली जब हम देखते हैं तो बी पहले आता है. यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी दे रखा है, बट स्टिल हम सेकेंडरी को पहले रखेंगे आइसोप्रोपाइल से. वाई? बिकॉज सेकेंडरी इज़ नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप. Why? Because we know that iso, neo, which are trivial names, which are common names, which are old names, they are considered to be the part of the fundamental alkyl group, while secondary, tertiary, they are not taken. फाइन. नंबरिंग यहाँ पर कहाँ से शुरू होगी? जो ब्रांच वाला है, जो ब्रांच वाला कार्बन हमारे मेन कार्बन चेन से अटैच है, वहाँ से हमारी नंबरिंग शुरू होगी. फाइन. द नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल जो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना. यहाँ पर बच्चे हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन निकालेंगे. ये मैंने स्ट्रेट बनाया है, सो लॉन्गेस्ट चेन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. द लॉन्गेस्ट चेन इज़ ऑफ 9 कार्बन्स. ऑन द 5th कार्बन वी हैव अ ब्रांच. ब्रांच के अंदर आई टोल्ड यू नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? 1 2 एंड 3. 1 एंड 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है. मेन ब्रांच, सब ब्रांच, ब्रांच की भी ब्रांच, दैट इज मिथाइल, डाई मिथाइल सेम. वेयर 1, 2. बीइंग अ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप, बीइंग अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हम इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे. 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल. प्रोपाइल वाई? बिकॉज इट इज ऑफ 3 कार्बन्स, राइट? Now where is this branch? It is on the 5th carbon of the main chain. And how many carbons? Known, 9. And all the carbons are singly bonded, so it is alkane. So the name is 5 hyphen. Hyphen is to separate the two numbers, right? हम बोल सकते हैं कॉमा भी कर रहा है, बट जब हम कोई नंबर लिखते हैं और नेम लिखते हैं तो हम हाइफन से सेपरेट करते हैं. जब हम 2 नंबर्स लिखते हैं तो हम कॉमा को यूज़ करते हैं. देन वी आर यूजिंग डाइमिथाइल. ओह सॉरी, हियर इट शुड बी सम हाइफन. डाइमिथाइल. You can also note it down. The very first alphabet is also small, that is D, small, right? Dimethyl propyl, no name. Fine. This is an example. The next is nomenclature of cyclic compounds. Cyclic compounds सिंपल नॉमेनक्लेचर है. जो पहले वाले रूल्स अभी आपको बताए एल्केन के, सेम फॉलो करेगा.
एल्कीन भी सेम फॉलो करेगा, बट इट विल टेल कि डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड के ऊपर वो नंबरिंग कर देगा, जहाँ पर भी जिस पोजीशन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में भी यही होगा। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जस्ट ये डिफरेंस होगा कि साइक्लो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो इट विल बी साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट में यू कैन सी साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर नंबरिंग का ऐसा होगा कि जो हमारा सेकेंड वाला है उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारी नंबरिंग आएगी। जैसे 1 मिथाइल, 3 हमारी this is ethyl. One line is all should be there. This is what? This is 1 methyl, and this one more carbon should be there. This is 3-propyl cyclohexane. In the third we have 1 2 3. यहाँ पर हम देखें बच्चे, हमने यहाँ इसको 1 नंबर दिया है, इसको 3 दिया है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इथाइल को 1 देना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली। फाइन, तो यहाँ 1 देने के लिए हमारे को इसलिए अलाउ नहीं करा बिकॉज दिस इज़ ब्रांच्ड। मोर ब्रांच जो कार्बन होगी साइक्लो में उसको प्रायर नंबर मिलेगा। फाइन, तो 1 फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, मोर ब्रांच है इसलिए उसको लोअर नंबर मिलेगा और नेक्स्ट को थर्ड मिलेगा। नाउ कम्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। Now what is functional group? Functional group is an atom or a group of atoms bonded together in a unique manner which is usually the site of chemical reactivity in an organic molecule. Actually, functional group defines a class of chemical substances. Like for example, we study alcohols. Alcohols have OH in place of hydrogen in an alkane, right? ये हमने 10 में पढ़ा था। OH जो ग्रुप है, जिस भी कंपाउंड में OH ग्रुप होगा, that will show the alcoholic property there, right? तो हम उसको कहेंगे कि ये अल्कोहल ग्रुप से है। जहाँ COOH होगा, that will be carboxylic acid. So we have already done this functional groups. So not going into that, we'll just name them. The very first is nomenclature of compounds with functional group. तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स, रूट नेम एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो नेम से पहले आएगा, रूट नेम जो नंबर ऑफ कार्बन्स बताएगा, कितने कार्बन की हमारी चेन है। फाइन, सफिक्स भी हमारा बाद में आएगा। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर ज़रूरी नहीं है 1 हो, दैट इज़ द सिंपल केस। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। सो व्हाट वी डू, वी टेक देम इन द प्रायोरिटी, राइट? जिनकी प्रायोरिटी जो होगी ज़्यादा होगी, हायर प्रायोरिटी वाले होंगे, वो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे एंड दैट ग्रुप विल बी एट द सफिक्स पोजीशन, जो कि बाद में होगा। फाइन, उससे पहले हम ये बताएंगे जो सफिक्स है उसके अंदर हम बताएंगे व्हाट प्राइमरी सफिक्स में कि बॉन्डिंग बिटवीन ऑफ कार्बन एटम्स कैसी है। वाइल इट इज सिंगल, डबल है तो EN होगा, ट्रिपल है तो YN होगा। फाइन, इसको मैं अभी आपको नेम्स बताऊंगी तब ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। प्रीफिक्स यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जब होंगे जो हमारा लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप होंगे। प्रायोरिटी चार्ट अभी आपको दिखाएंगे, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग द nomenclature of these compounds. सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होगा वो हमें शेप ऑफ द कंपाउंड बताएगा, वेदर इट इज़ अ स्ट्रेट चेन और अ साइक्लिक कंपाउंड। फाइन, जो रूट नेम है वो मैंने आपको बता ही दिया, कार्बन होगा। फाइन, नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई हैव डिफाइंड देम। व्हाट आर दीज? रूट और पेरेंट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी फिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। Now when compounds contain more than one functional group, the order of precedence determines which groups are named with prefix or which are suffix. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन प्रीफिक्स है कौन सफिक्स है? जिसकी प्रायोरिटी हायर है दैट विल बी सफिक्स, जिसकी कम है दैट विल बी prefix. Now look at the table. This is showing the increasing priority. Now you can look
halo compounds, mean to say alkyl halides, chlorine, halogens, they are least in this priority. इससे पहले नाइट्रो ग्रुप्स आते हैं, फिर ईथर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद जो हाईएस्ट पे है दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फाइन. तो जब भी हम कार्ब एसिड्स लेंगे तो सफिक्स को जब हम यूज़ करेंगे, जो हम एंड में एज टेल यूज़ करेंगे वो होगा ओइक एसिड, और अगर प्रीफिक्स में आ जाएगा तो वील यूज़ इट एट कार्बोक्सी. ऐसा हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप हो. फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक भी है और नाइट्राइल भी है. नाउ यू कैन सी ऊपर कार्बोक्सिलिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ है, और नीचे नाइट्राइल है. नाउ नाइट्राइल की प्रायोरिटी कम है तो इसका हम क्या देखेंगे, प्रीफिक्स. दिस इज साइनो. साइनो प्रीफिक्स में आएगा और सफिक्स में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड. फाइन. इसको हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टेबल से, जहाँ फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलाज देख सकते हैं. फॉर्मूला से हम इजीली फाइंड आउट कर देते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है और हम उसकी नेमिंग थोड़ा इजीली कर सकते हैं. फाइन. नाउ हियर यू कैन सी, जो मैं आपको बता रही थी कि एल्काइल हैलाइड्स से भी कम प्रायोरिटी नाइट्रो की होती है. फाइन. ओके. नाउ दिस इज इंक्रीजिंग प्रायोरिटी लिस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक की है. प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. द नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है. रूल्स हमारे स्टार्टिंग से सभी चलेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप की अकॉर्डिंगली अब हम उसको नेम करेंगे. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स है, रूट है और सफिक्स है. फाइन. सो हियर वी हैव two groups. One is Br and the other is keto group. Right? आपने find out कर लिया होगा. This is what a keto group. Now look बेटा, इसकी naming जो है, this is 5 and this is very comfortably you can find out. इसकी naming के अंदर हमारे पास सबसे पहले रूट नेम फाइंड आउट करते हैं हम, जो हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हैं. These are 5 carbons, so the root name will be pent. All the carbons are bonded singly with each other, so that will be ane, that will be alkane. And the highest priority group is what? That group is what? Ketone, that is one. We are using one as suffix for ketone. The lowest priority is of hello, bromo. Here bromo is of lowest priority, so it will be in prefix side. Okay. Now the secondary is methyl. Why? This is simple on the chain and it is a simple substituent we are taking it. Okay. These shows low this is of low priority list. Fine. तो अब बच्चे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें नंबरिंग करनी है. नंबरिंग करने के लिए इसकी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 ऐसे ली जाएगी. ये सेकंड पे है ब्रोमीन. फाइन. जो ब्रोमीन सेकंड के ऊपर है वो पहले लिखेंगे एज प्रीफिक्स, दैट इज 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एंड पेंटेनॉल. कैसे लिखा, 2 bromo is what? 2 bromo is the first prefix, primary, then the 4 methyl next prefix, then the root name is pent, suffix में ane आ गया, single bonded है, और secondary के अंदर on जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसकी प्रायोरिटी हायर है. फाइन. इससे आपको थोड़ा इजी होगा. The next is nomenclature of substituted benzene compounds. Benzene compounds is also a large class of compounds in organic chemistry, right? Benzene क्या होती है? C6H6. Fine. तो बेंजीन जो होती है उसके आयुपेक नॉमेनक्लेचर जो होता है वो सिर्फ प्रीफिक्स में हम उसको लगाते हैं और उसका सिंपल नेमिंग हम उसको इजीली कर सकते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास Cl है तो इसको मैं क्लोरोबेंजीन लिखूँगी. अगर अकेला NO2 है तो नाइट्रो लिखूँगी. अगर NH2 है तो अमीनो बेंजीन लिखूँगी.
द नोमेनक्लेचर इज सिंपल, हम सिर्फ उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं ग्रुप को और उसका नेमिंग कर देते हैं, फाइन। यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हो जाएं इन केस, एक क्लोरीन हो जाए एक नाइट्रो हो जाए, फाइन। तो कुछ हमारे पास ट्राइवियल कॉमन नेम्स हैं जिनको हम एज सच यूज़ करते हैं, फाइन। वहाँ हम IUPAC की कंडीशन नहीं लगाते। तो हमारे पास क्या है, वो कंपाउंड्स जैसे नाइट्रोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है। अगर हम मिथाइल बेंजीन लिखते हैं तो हम उसको टॉलीन कहते हैं, अगर हम एमिनो बेंजीन लिखते हैं तो हम उसको एनिलीन कहते हैं, फाइन। इन ट्राइवियल नोमेनक्लेचर द टर्म ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर ऑल्सो यूज्ड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्सटीट्यूएंट होते हैं बेंजीन में, मतलब साइड बाय साइड 1 and 2, तो हम उसको ऑर्थो कहते हैं। 1 and 3 उसको हम मेटा कहते हैं, 1 and 4 उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। नाउ इन द सेकेंड फिगर आई एम शोइंग NH2 and NO2. Aniline is of higher priority, NH2 is higher, नाइट्रो इज ऑफ लोअर प्रायोरिटी। तो यहाँ हम उसका नेमिंग कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या तो हम इसको बोलते हैं 1,4 पोजीशन, फाइन। हम इसको ट्राइवियल नेम के अंदर पैरा नाइट्रो एनिलीन बोलेंगे, फाइन। और ये नेम्स कॉमनली यूज्ड हैं बेंजीन के साथ, बाकी एल्केन्स में और उनमें बहुत ही कम यूज़ होते हैं। इन दिस केस दीज नेम्स आर वेरी कॉमन, राइट। अब हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ बेंजीन इज ऑल्सो सब्सटीट्यूटेड एज फिनाइल। समटाइम्स जो हमारी ब्रांचेस हैं, जो हमारी सब्सटीट्यूएंट हैं लॉन्ग एल्केन कार्बन चेन के अंदर, जो स्ट्रेट चेन है उसमें फिनाइल को एज सब्सटीट्यूएंट हम लेते हैं। उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर 1 हाइड्रोजन लेस होता है, वो बेंजीन के बजाय उसका हाइड्रोजन हट जाता है तो वो फिनाइल हो जाता है। द फॉर्मूला इज C6H5। तो हम उसको एज फिनाइल सब्सटीट्यूएंट को नेमिंग करते हैं जिसकी एब्रीवेशन है PH, फाइन। यहाँ पर भी सेम चलेगा। अगर मेरे पास दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव Cl on one position and Cl on second position, तो I can also call it dichloro, right? Dichloro, bromo, diiodo in the case when two substituents are same, fine। इसके साथ साथ अगर हमारे पास डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स हैं तो हम यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको नेम करेंगे, ओके। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई वांट टू शो यू some examples. These are 3 examples and I hope all of you can solve these. The very first structure, यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग करने के लिए हमें इसकी लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है। सेकेंड हमें इसका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट निकालना है। फिर उसके बाद हम इसकी अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे, फाइन। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रेट चेन ये सेंटर वाली है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा सेंटर वाला है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं एंड नेक्स्ट के अंदर 1 इथाइल। सो द नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेमिंग करते टाइम हम अल्फ़ाबेटिकली नोट करेंगे। थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है तो इथाइल, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पोजीशन पे 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन इसका नेम होगा। इन द नेक्स्ट वी हैव 2 ग्रुप्स, 2 फंक्शनल ग्रुप। आई होप आप लोग सब इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। येस, वेरी ट्रू। One is keto and the other is carboxylic. This is keto and this is carboxylic. Carboxylic will show the higher property.
नाउ हेयर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन है, तो जो नंबरिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम द कार्बन ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ. दैट इज नंबर 1 विल बी गिवन टू दिस, 2, 3, 4, 5. फाइन. सो द नेम विल बी, कीटो के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो. द नेम विल बी लाइक 1, 2, 3, 4, 4 ऑक्सो pentanoic acid. In the next third one we have benzene. Benzene में हमारे पास 3 substituents हैं, chlorine, nitro and methyl. So the numbering will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका नेम होगा 2 nitro, 4 methyl chlorobenzene. फाइन. अल्फ़ाबेटिकली इसके अंदर हम नेमिंग करेंगे. 1 के ऊपर क्लोरीन है, 2 के ऊपर इसका नाइट्रो है, 4 के ऊपर इसका मिथाइल है, CN and M. ओके, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी नेमिंग करेंगे. होप यू ऑल गॉट अंडरस्टूड. थैंक यू एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द नेम्स. जितना नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस होगा उतना ही रिफाइंड होगा. फाइन. थैंक यू बच्चा.